We have numerous, precedents when Pakistan has spoken about peace and good neighborly relationships between India and Pakistan. But at the same time, when Pakistan is talking like this, simultaneously, a good part of its establishment is busy planning and executing terror activities within India. Now, till the difference between what they say and what they practice doesn't narrow down or disappear, any talk with Pakistan in improving relation between the two countries is absolutely business. Sir, Veerappa Moily has said that All BJP is seeking is friendship and blessings of people of India. And Mr. Moily must wait for a few months to know as to the BJP has the blessings of people of India or they are willing to bless this corrupt and ramshackle Congress. the last evening there is an incident happened in Regarding the bikers gang has been fired by the Delhi police. Bikers have been holding law and order to ransom. Even the security of common people have been endangered repeatedly, and so far the police have been guilty of keeping its eyes closed on such open defiance of law. And I don't know what sort of a method you can have in dealing with people who will not listen to any reason, who will not react to requests. And there have been numerous occasions when policemen who try to handle these people in a proper manner, they have been insulted, they have been manhandled, and now if the police has at last acted, I don't think we should raise questions about the role of the police in this episode. And because if you raise questions repeatedly, then obviously you demoralize the police, and as and when we see people breaking the law, they keep their eyes shut. sir, एक Sir, सवाल यहाँ Shakil Ahmed listed by I call this a sick comment. And Mr. Shakil Ahmed's comments of late have been so cheap that they don't deserve any reaction. सर एक नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम ये लोग रखेंगे स्मार्ट नमो मोबाइल. I have no idea about it. about Telangana, sir. Congress has been very dishonest on the issue of Telangana right from the beginning, and they have repeatedly promised it, never delivered, and I don't think that even this latest exercise is going to deliver anything. This is just another effort by the Congress to hoodwink people of Telangana and just to keeping in view the forthcoming elections. The Rahul Gandhi has said to its Maharashtra region that the credit of the food security organization should not be given to Mr. Rahul Gandhi's statement brings out two stark realities. One, the aim of this entire exercise is not to help the poor to have access to food. The entire idea is to get credit for this scheme and then get votes. And this is virtually been reduced to a vote bank politics. And number two, the promise that they will be able to give food to the poor is as lousy and as fraudulent as Mrs. Indira Gandhi's promise of 1971 when she promised to remove the poverty and she won the elections. But the poverty is very much here in India even after 40 years, and most of the time Congress has been in power. And similarly, food will continue to be as elusive to the poor as it has been. It is just an electoral gimmick, and Mr. Rahul Gandhi's statement has proved it. American administration told that Modi is himself apply for a visa, then they will consider it. I don't know. This is a very absolutely meaningless debate. The man has not even applied for visa. And you are saying you will take it, you will accept it, you will reject it. It's an absolutely fruitless exercise. सर इसी को हिंदी में बोल दीजिए प्लीज. ये पूरी की पूरी चर्चा बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया उनकी एप्लीकेशन आपने स्वीकार कर ली, अस्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, रिजेक्ट कर ली, उसका अर्थ क्या है?
ये तो बिल्कुल बेमानी बहस है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में जो एक बड़ी समस्या है वो है पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर। पाकिस्तान अक्सर शांति की बात करता है, साथ साथ भाईचारे की बात करता है, परंतु जो उसकी करनी है वो बिल्कुल अलग है। आतंकवाद का प्रयोजन जो है ना केवल भारत में, शेष विश्व में पाकिस्तान की धरती से होता है। और पाकिस्तान का जो सत्ता अधिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी सारे खूनी खेल में सहभागिता है। तो एक तरफ तो आप शांति की बात करेंगे और दूसरी तरफ हमारी पीठ में छुरा भौंकने के लिए छुरा तेज करते रहेंगे। जब तक ये करनी और कथनी में अंतर ना बिट जाए तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत जो है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। शरीफ साहब चूँकि प्रधानमंत्री बने हैं तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि एक्शन में भरोसा रखते हैं। अभी तक तो सीमा से जो समाचार आ रहे हैं, निरंतर घुसपैठियों को भारत में धकेलने का प्रयास हो रहा है। और घुसपैठिए जो है वो भारत में कोई टूरिज़्म करने के लिए नहीं आ रहे, वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरफ तो के संबंधों को सुधारने की बात करते हैं, परंतु उनकी सरकार और उसके कारिंदे, उसके अधिकारी, वो सब भारत को लहूलुहान करने में लगे हुए हैं। तो जब तक दोनों के बीच में खाई नहीं मिटती तब तक किसी बातचीत का या शरीफ साहब शांति वार्ता का। शकील अहमद साहब, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत हल्की बातें करते हैं और ना तो इन हल्की बातों का किसी को संज्ञान लेना चाहिए और ना ही उसके ऊपर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक बढ़ते हुए एसिड अटैक को देखते हुए एसिड की बिक्री में रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी तेजाब का जो प्रयोग है अपराध करने में, वो केवल उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश से बंद नहीं हो सकता। उसके लिए समाज और कानून और व्यवस्था रखने की जिन पे जिम्मेदारी है, विशेषकर पुलिस अधिकारी, उन सबके सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आदेश दिया जिसमें इस काम में सहायता मिल सकती है, परंतु ये जो समाज में बीमारी है इसका निदान तो समाज कर सकता है और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस, वो कर सकती है। सर, कांग्रेस पार्टी और सरकार संकेत दे रही है कि अलग तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही इसको लेकर तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस। तेलंगाना के मामले में ये सरकार हमेशा से बेईमान रही है। याद होगा जब तेलंगाना संघर्ष समिति के एक नेता ने अमरण अनशन रखा था तो तब श्री चिदम्बरम गृह मंत्री थे और उन्होंने तेलंगाना की जनता को, देश को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी तेलंगाना बन जाएगा, परंतु हम सब जानते हैं कि वो को पूरा का पूरा दिवा स्वप्न ही रह गया, क्योंकि सरकार कभी भी इस मामले में गंभीर नहीं थी, ईमानदार नहीं थी और अभी भी चुनाव को रखकर ये सारी कवायद चल रही है और इसका कोई अर्थ नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है कि मोइली साहब ने एक बात कही है कि जब से मोदी जी को जो है नेता के तौर पर देखा गया है, उनके लीडर के तौर पर, तब से जो है फ्रेंडलेस हो गया है बीजेपी, यारी दोस्ती रही नहीं किसी। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी की मित्रता चाहिए तो भारत की जनता की चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो भारत की जनता का चाहिए। और मोदी साहब इंतज़ार करें कुछ और महीने, चुनाव में साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता यही पहली मेरिडियन के पास जो है गोलीबारी हुई है। पुलिस वालों ने 2 बाइकर्स के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक की मौत हो गई। कहा जा रहा था कि वो स्टंट दिखा रहे थे, क्या दूसरा तरीका हो सकता था बचाने का? स्थिति बहुत खराब है। देखिए, दिल्ली में एक वर्ग खुले रूप से भारत की कानून और व्यवस्था, संविधान, सत्ता अधिष्ठान,
उसको चुनौती देते हुए रोज रात को सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी का नंगा नाच करता है। और अभी तक ये पुलिस की असफलता रही है। और ये भी देखा गया कि ये जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, ये अक्सर अगर कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करता है तो उसको पीटना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर पुलिस के कहने पे कोई नहीं रुकता तो पुलिस को जो भी समझ में आएगा पुलिस उस समय वो करेगी। क्योंकि जब पुलिस का आदमी पिटता और मरता है कोई इस तरह की स्थिति में, तब उसके लिए तो कोई प्रश्न नहीं पूछता। परंतु जो कानून तोड़ने वाले हैं, अगर वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनके लिए बाद में इस तरह के प्रश्न पूछकर हम स्वाभाविक रूप से जो पुलिस है, कानून और व्यवस्था रखने की जिन पे जिम्मेदारी है, उनका मनोबल गिराते हैं। सर, एक हाथों से महाराष्ट्र में हिदायत दी है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है, इसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए, उनके अलायंस शरद पवार। राहुल गांधी जी ने इस तरह की बात करके दो बातें साफ कर दी। एक तो केवल ये चुनावी मुद्दा है उनके लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि गरीब की थाली में भोजन पहुँचे। उनके लिए चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस का जो खिसकता हुआ जनाधार है वो बचे और जो वोट्स हैं, जो मत हैं, वो कांग्रेस की मतपेटी में पड़े। तो एक तो ये बात साफ हो गई। और दूसरा, जिस तरह से 1971 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीता था और गरीबी कहीं दूर दूर तक 50 ही हटी, उसी तरह ये जो अभी अपना ये बिल लाए हैं, जो कानून बनाने की बात करते हैं, इस कानून से भी किसी गरीब का पेट नहीं भरने वाला। ये केवल एक चुनावी नारा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सत्ताधारी दल ने लोगों के खाली पेट पर, भूखे पेट पर भी राजनीति करने से गुरेज नहीं किया।